آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز اور میں ہوں محور صدیق۔ انسان کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں اور کئی مخلوقات آباد ہیں جن میں جانور، پرندے، سمندری مخلوقات اور مائکرو آرگینزمز شامل ہیں، اور ہر مخلوق کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ ایک وائرس جس کی موجودگی کو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے، وہ کسی بھی جاندار کی جان لینے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن ان ساری مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق انسان ہے۔ انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود انسان ایک ایسی مخلوق سے خوفزدہ اور ڈرا ہوا نظر آتا ہے جو اسے نظر بھی نہیں آتی۔ ایسی مخلوقات کو پراسرار ماورائی مخلوقات کہا جاتا ہے۔ ان میں جن، چڑیل، بھوت، دیو، چھلاوے وغیرہ شامل ہیں۔ ان چیزوں کو انسان دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس زمین پر ایسے کئی افراد ہیں جو کہ ایسی مخلوقات کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایسے واقعات سناتے ہیں جو ان کے ساتھ رونما ہوئے ہیں، اور ایسے واقعات کو دوسروں تک پھیلاتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی خوفزدہ ہوں۔ تو کیا واقعی ایسی مخلوقات کا کوئی وجود ہے؟ اور کیا ہم ایسی مخلوقات سے ڈر ڈر کے جئیں؟ اور کیا ایسی مخلوق ہماری دشمن ہے؟ اس بارے میں آپ دیکھیں ہماری یہ رپورٹ۔ دور جدید کی ایجادات میں دوسری اشیاء کے علاوہ جو مقام سیلولر فونز اور کمپیوٹرز کو حاصل ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ صابندانی کے برابر اس حیرت انگیز مشین کا کمال یہ ہے کہ بس ایک بٹن دبائیے اور ساری دنیا میں جس سے چاہیں بات کر لیجئے۔ اس سے زیادہ خصوصیات کمپیوٹر میں موجود ہیں۔ ایک بٹن دبا کر نہ صرف سیکنڈوں میں خطوں کی ترسیل کر سکتے ہیں، دستاویزات کا تبادلہ کر سکتے ہیں، بیک وقت کئی لوگوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، بلکہ اسکائپ کے ذریعے ہزاروں میل کے فاصلے کے باوجود آمنے سامنے بیٹھ کر براہ راست گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آج سے 100 سال پہلے اگر کسی کو سیل فون یا کمپیوٹر کے بارے میں بتایا جاتا تو وہ آپ کو یا تو پاگل قرار دیتا یا پھر آصف زدہ ہونے کا شبہ کرتا۔ انسان کو عقل کی دولت عطا کی گئی جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ایسے ایسے کام کر جاتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جب تک انسان عقل کا استعمال کرتا رہتا ہے وہ معرکے سر کرتا رہتا ہے، اور جو ہی عقل کا استعمال بند کر دیتا ہے اس کے ذہن میں منفی خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ توہمات کا شکار ہو جاتا ہے۔ بھوت، بریت اور چڑیلوں پر یقین کرنے لگتا ہے۔ اس کی اس کیفیت سے پیر، فقیر اور جعلی عامل خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اور بیوقوف بنا کر ہزاروں روپے بٹورتے ہیں۔ آصبوں کا گہرا تعلق قبرستانوں سے بھی ہے۔ پیشہ ور جرم کرنے والے، منشیات کے عادی لوگ، قبریں کھود کر میت نکالنے والے افراد سنسان قبرستان کو اپنا مسکن بناتے ہیں اور مختلف قسم کی افواہیں پھیلاتے ہیں تاکہ لوگ وہاں جانے سے گریز کریں اور ان کو وہاں سے کارروائی کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ حکومت کو چاہیے کہ قبرستانوں میں روشنی کا بندوبست کرے تاکہ نہ صرف جرائم پیشہ افراد اور منشیات کے عادی لوگوں سے چھٹکارا نصیب ہو بلکہ معصوم لوگوں کے ذہنوں سے آصب کا خوف بھی دور ہو سکے۔ آپ نے ہماری یہ رپورٹ دیکھی، آپ نے دیکھا کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں بھی ایسے ہزاروں مقامات ہیں جو کہ اپنی پراسراریت کی وجہ سے مشہور ہیں۔ تو آج ہم اپنے اس پروگرام میں یہی جانیں گے اور دیکھیں گے کہ پراسرار جگہوں کی پراسراریت کی وجہ کیا ہے، اور فیکٹس نکالنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایسی ماورائی مخلوق کو دیکھا ہے تو ان کو وہ مخلوق کیسی دکھی، وہ دکھنے میں کیسی ہوتی ہے، اس مخلوق کا ظاہر ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ۔ مشہور ہے کہ یہاں کافی پراسرار واقعات رونما ہوتے ہیں، جس طرح جن، بھوت، چڑیلیں نظر آتی ہیں، لفٹ مانگتے ہیں لوگ، رات گئے۔ تو کبھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا؟ مجھے 17 سال ہو گئے یہاں، تو میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی ایسی۔ ہاں یہ لوگوں نے کہا یہاں، بعض لوگوں نے کہ ہمیں یوں ملا 2 بجے 3 بجے ایسے ہوا ایسے ہوا، ہمیں تو کوئی چیز نہیں نظر آئی۔ آپ کو نظر نہیں آئی؟ اچھا، یہاں پہ اس روڈ پہ ایک بنگلہ بھی ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں وہاں کے جو افراد ہیں وہ قتل کیے گئے تھے، تو ان کی روحیں جو ہیں وہ گزرتی ہیں اور وہ تنگ کرتی ہیں، تو اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ لوگوں سے نہیں سنا اس بارے میں؟ اس بارے میں تو یہاں بنگلہ ایسا ویسے ہے بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا؟ آپ لوگوں کو کوئی جن یا بھوت نظر آیا، چڑیل نظر آئی ہے؟ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ایک عورت ہے نظر آتی ہے جو روکتی ہے۔ ہاں بہت دفعہ پہلے ایک دفعہ نظر آئی تھی، تقریباً ایسے 4-5 سال پہلے رات کو تقریباً 3 بجے ہم لوگ دکان بند کر کے جا رہے تھے جی،
तो हमें यहीं सामने नज़र आई थी, मगर जब हम उसके पास गुजरे तो गायब हो गई अचानक। गायब हो गई? जी हाँ। क्या कर रही थी वो? खड़ी हुई थी? खड़ी थी, बिल्कुल खड़ी थी, लेडीज़ के इनके रूप में, सफ़ेद लिबास में। सफ़ेद लिबास में? तो सफ़ेद लिबास में तो अक्सर औरतें नहीं होती। मगर वो तो सफ़ेद लिबास में थी। जब उसके पास गए हमने सोचा शायद कोई लेडीज़ है। अच्छा, रात के कितने बज रहे थे? 3 बजे। 3 बजे का टाइम था। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि कोई खातून है, क्या पता उसको मदद की ज़रूरत है, हम उसके पास? इसीलिए तो हम उसके पास गए थे, मगर जब उसके पास पहुँचे तो वो गायब हो गई। उसको देखकर खुद हम डर गए काफ़ी कि ये ऐसी क्या चीज़ थी। यानी उसने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया, वो नुकसान गायब हो गई? यानी वो शैतानी करने के लिए आई थी, आप लोगों को डराने के लिए। तो अभी आप लोगों को डर लगता है यहाँ से गुजरते हुए? मुझे तो नहीं डर। तो बहुत अच्छा हो गया। आदत हो गई अब आपको? ये भाई, ये हमारा भाई रात को यहाँ सो रहा था ना बाहर। हाँ। तो रात को तकरीबन 4 बजे का टाइम था सुबह। तो इसका गला दबाया था किसी चीज़ ने। अब कंफर्म नहीं है हमें कि ये वही थी या कोई और चीज़। आपका गला दबाया? मुझे बताओ किस तरह से, आपको क्या फील हुआ, किस चीज़ ने आपका गला दबाया? पढ़ाई की तो फिर छोड़ दिया उसने। बहुत बारीक चीज़ होगी, जैसे कोई मेरे ऊपर कोई बैठ गया है। सुनने हमारे बड़े बुजुर्ग बूढ़े यही कहते हैं कि दुल्हन के रूप में ही इंतकाल हुआ। इस वजह से आप क्या कह रहे हैं? आपने छन छन सुनी? बहुत जगह सुनी छन छन की आवाज़ें, मैंने कई दफ़ा उठा लोगों को बताया। कभी ऐसा हुआ हो कि वाकया पेश आया हो, आपकी नज़र में किसी औरत ने आपको हाथ दिया हो और आपने सोचा हो कि वाकई क्या पता ये इंसान हो? जी, एक बार हुआ था। क्या हुआ? यहाँ से ये कारसा रोड से मैं पुल के ऊपर चढ़ा था, रात को 3-4 बजे का टाइम था। तो बाइक पर था मैं, तो रास्ते में एक औरत ने, उसके पाँव उल्टे थे, जब मैंने देखा तो मैंने बाइक तेज़ कर दी, मैं निकल गया। खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा कभी कोई वाकया पेश आए कि किसी ने आपसे लिफ्ट मांगी हो और जब आप उसके पास पहुंचे और वो गायब हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? हम लिफ्ट देते ही नहीं है, तो मांगे लिफ्ट के लिए रुकते ही नहीं है, क्योंकि हालात ही ऐसी नहीं है उनके आदमी लिफ्ट देने के लिए भी। तो ये वाकयात क्या लोगों ने ऐसे ही बनाए हुए? वहम है ये लोगों ये के? वहम है। वहम है? तो हम ऐसे लोगों की बातों पे यकीन ना करें? नहीं, किसी की बात पे यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्सीडेंट के अलावा और कुछ नहीं है। मुझे ये बताइए कि इस रोड पे कभी आपसे किसी औरत ने रुकवाया रिक्शा रात के 2 या 3 बजे? नहीं, यहाँ से तो कोई वाक़या नहीं हुआ। मिल जाते कभी कभी, मगर कभी हम इनकार कर देते, कभी उठा के ले जाते। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है किसी चुड़ैल ने आपसे लिफ्ट मांगी हो कि मुझे आगे तक छोड़ दो, जब आपने उसको बिठाया वो गायब हो, आपके रिक्शे में हो ही नहीं? नहीं, कोई नहीं। कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ? कभी आपको डर लगा है किसी को देख के रात के 2 या 3 बजे? तो ये जो वाकयात होते हैं ये किन लोगों के साथ होते हैं? लोग क्यों कहते हैं कि हमारे साथ वाकया हुआ है? तो अचानक किसी को परवाह आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग यहाँ रेलवे ट्रैक पे बैठे हुए हैं और इस रेलवे ट्रैक के बारे में कहानियाँ मशहूर हैं। क्या कहानियाँ मशहूर हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, ये जो है यहाँ पे जो है ना, ये बहुत ही भारी जगह है। यहाँ पे साया है और 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोग जो ड्यूटी से आते हैं और वो चीखे पुकारे हैं, उन्होंने कोई चुड़ैल देखी है और उसके बाद हम लोग उठ के यहाँ से महल्ले से सोए हुए थे, तो वापसी इधर आए हैं, तो हमने बोला क्या है, तो वो यानी कि डरे हुए थे, ऐसे उनको पानी वानी पिलाया है, तो उन्होंने बोला कि हमने कोई चुड़ैल देखी, ऐसे आंखों से खून ऐसे टपक रहा था, ऐसे बाल थे। और आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? आपने कहा चुड़ैल भी नजर आई थी एक आदमी को, कहाँ चुड़ैल नजर आई थी? मुझे बताइए जगह। ये सामने ये जो है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। यानी पटरी के ऊपर ही वो चुड़ैल खड़ी होती है? ये पुलिया है, ये थोड़ा सा ये जो है ना, ये लोकेशन ऐसे है कि जंगल सा है। अभी तो ये फ्लैट बन गए, उससे पहले ये जो है यहाँ झाड़ियाँ थी। जी, झाड़ियाँ थी और ये घास वगैरह लगी हुई थी। अब ये है कि थोड़ी सी आबाद हो गई है इसके, और झाड़ियाँ कटवाई हैं। तो वो उनकी अपनी गफलत तो नहीं होती कि जिस तरह से आप लोग यहाँ पटरी पे बैठे हुए, कभी भी ट्रेन आ सकती है, वो चल के इस तरह से चली जाएगी, इसी वजह से? बहरहाल ये है कि लेकिन लोग तो पूरे कराची में बैठते हैं, पूरे पाकिस्तान में ट्रेनों में जो है पटरियों पे आके बैठते हैं। अब लाइट जैसे जाती है, प्रॉब्लम है, यहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन ये है कि सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर क्यों आते हैं, डेली हर महीने क्यों कटते हैं? तो आपको पता है कि यहाँ क्या होता है? जी, हमारे तो खुद भी वाले साहब का इंतकाल हुआ है। कहाँ? इधर ही, इसी पटरी पे? हाँ, वो आ रहे थे, रात को 1 बजे का टाइम था, तो यहाँ गिर गए थे। रीढ़ की हड्डी इसकी 7 जगह से डैमेज भी हो गई थी। हाँ, तो वो गिरने की वजह से उनकी डेथ हुई है या उनके ऊपर नहीं, ट्रेन कोई नहीं गुजरी है, बिल्कुल सही था, जिस्म में कोई खराश नहीं थी, अंदरूनी चोट लगी तो थी। क्या किसी ने धक्का दिया था या बस किसी ने धक्का दिया था, वो बिल्कुल ही अकड़ गया था। ईद के 6ठे दिन पर उनकी डेथ हो गई। तो आप लोग अक्सर यहाँ से गुजरते हैं? तो आप और हमारे को रास्ता ही नहीं है ना, यही हमारा एक ही रास्ता, यहीं से हम लोग गुजरते हैं। तो आप लोगों ने फिर बाद में कुछ एविडेंस तलाश करने की कोशिश की, किसने उन्हें धक्का दिया है, किस वजह से उनकी डेथ हो गई? इतनी जगह से हड्डी कैसे टूट सकती है? यहाँ कोई रात को आता ही नहीं है, डरते हैं यहाँ हर एक बंदा।
अच्छा यहाँ हर साल 1-2 मौत लाजमी होती है, हर साल। हाँ, तो यही एक इलाका है, यही एक पोर्शन ये है? यहाँ से लेकर फाटक तक, ये फाटक तक जो है ना, ये हर साल यहाँ 1, 2, 3 तो ये लोगों की गफलत की वजह से होता है या ये लोगों ने ऐसी कहानियां बनाई हुई हैं ताकि ये लोग रेलवे डर ट्रैक गए। पे लोग ना आए? नहीं, यहाँ लोग डर गए हैं, डर यहाँ गए। वाकया हो गए हैं, लोग डर गए हैं, औरतें यहाँ से लेडीज डर गई। तो ये क्या है, साए हैं, भूत यहाँ है, जिन है, चुड़ैलों का ऐसा है, चुड़ैलों का? जी। क्या, कैसी होती है चुड़ैल? बस कोई भी जाता है उसको डरा दिया, एकदम घेर गया, झटका आ गया। आपको कभी कोई वाकया पेश आया आपके साथ? ये वाकया पेश तो नहीं है, देखा है काफ़ी। तो क्या देखा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है, सही है। यहाँ से ट्रेन है, कितनी दफ़ा मैंने देखे नीचे आए में कटे में मरे। अच्छा, लोगों को देखा है आपने? देखा है, अपनी पटरी के आंखों से नीचे? देखा है। तो जो लोग पटरी के नीचे आते हैं उनको पता नहीं चलता कि पीछे से ट्रेन आ रही है? पता चलता है क्यों नहीं, कितनी दफ़ा, एक दफ़ा इधर बंदा आ रहा था, एक लड़का था, मैकेनिक था, वो भी नीचे आया था, उसको एक दफ़ा किसी ने बंदे से हाथ पकड़ के नीचे उतारा है, लेकिन उसकी तकदीर ऐसी, वो ऊपर आके फिर चढ़ गया ट्रैक के ऊपर। फिर चढ़ गया? तो ऐसा तो कोई पागल ही होगा जो जिसको पता चल गया ट्रेन पीछे से। वहाँ यहाँ से आ रहा ट्रैक के ऊपर चल रहा है, पीछे हारन दे रही है ट्रेन, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा, हाथ से पकड़ के नीचे उतारा है, लेकिन फिर वो वापस चढ़ गया उसके ट्रैक के ऊपर। यानी वो अपने होशो आवाज में ही नहीं था जब नहीं वो था। चल रहा था ट्रैक के ऊपर? नहीं चल रहा था ना, पता उसको होश नहीं था? कुछ भी नहीं था, यानी जितने भी लोग यहाँ पे मरे उनको होश नहीं होता जब भी वो मरते कुछ भी। हैं। हाँ ना, अल्लाह ताला ने मखलूक़ात बहुत ज़्यादा पैदा की हैं जो शुमार से बाहर हैं, लेकिन उन मखलूक़ात में सबसे अफजल मखलूक जो है वो इंसान है। कुरान पाक में वाज़ेह है, वलक़द करमना बनी आदम, हमने सबसे ज़्यादा फजीलत वाला इंसान को बनाया। इंसान को सबसे ज़्यादा तमाम मखलूक़ात के ऊपर फजीलत है। चुड़ैल का, देव का कोई वजूद है ही नहीं, इसलिए जो लोग चुड़ैल को कहते हैं देव को देखा, ये तो हमारे यहाँ कहावत है कि बच्चों को डराने के लिए, छोटे बच्चों को कि चुड़ैल आ गई तुम्हें खा जाएगी, ये एक कहानी है। जिन्नात एक मखलूक है, लेकिन वो मखलूक ऐसी है जो नज़र नहीं आती। इंसान पैदा हुआ है मिट्टी से और जिन्नात की खिलकत है आग से। जिन्नात में अल्लाह ताला ने ये कुदरत रखी है कि वो हर जगह अपनी शक्ल बदल कर, सांप की शक्ल में, बिच्छू की शक्ल में, किसी दूसरी शक्ल के अंदर जिन्नात आ सकते हैं। लेकिन ये कहना कि जिन्नात इंसान के ऊपर गालिब हैं, ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि इंसान जो है वो तमाम मखलूक़ात के ऊपर गालिब है। और बड़ा अजीब सा मुझे फील हुआ जब मैंने 2 साए आते हुए देखे। बिल्कुल अब मेरे सामने वो लोग बैठे हुए हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि जाऊँ और फ़ौरन उनके पास पहुँच जाऊँ। अब पता नहीं ये इंसान है क्या है।